very first episode. From stereo to life, we are here to changing the narrative together. I am Priyanka Yadav, a mental health professional and today's host for this show. And our mission is to change the narrative around the society. And we have I am Pranjal Sharma, your co-host. Today we are diving into something really heavy. Yet by talking about it, we are really taking the first essential step towards suicide prevention among students. So that's right. We have been listening to the lots of news about the society, like NCRB reports that in 2022, 13,000 students committing suicide. That's very huge number actually. 36 per day, and most of them are the under 30 years of old. So it's very crucial for us to discuss, to enlighten us with about the suicide and how we can prevent it. Exactly, and to guide us through this crucial conversation, we are honored to have with us Mrs. Pallavi Gupta, Director and founder of Armin, with over 19 years of experience in the mental health service. To put into perspective, some of us here are 19 and 20 years old. So today, she'll help us unpack how we can all come collectively together and change the narrative around suicide. And for dear audience, we have very excited segment lined up for you as well. So we'll be giving you some blank cards. So if you have any question, any myths or anything related to suicide, you can just write it down and we'll pick one of your questions in our burning posting myths segment. So stay tuned for that. And now we'll begin our expert talk with ma'am. So मैम let's start with the very basic कि सुसाइड जब हम फील कर रहे हैं सुसाइडल बिहेवियर आ रहे हैं so how the person feel how he is struggling or she is struggling with This word struggling that need to be understood first कि किसको हम struggling कहते हैं. मैं अगर आई की बात करूँ तो मैं आप लोगों से जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं to start with मैं in general सबसे पूछती हूँ कि ऐसा आपकी जिंदगी का जो भी है 20 साल 25 साल 30 साल से ज़्यादा बड़े तो मुझे कोई देख नहीं रहे पर इस एज तक आते आते आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी निराशा को महसूस किया है या तनाव को महसूस किया है. चाहूँगी कि आप लोग हैंड रेज करें. you can hand raise if you ever feel depressed नॉट डिप्रेस्ड तनाव को महसूस किया शायद एक पल के लिए एक दिन के लिए समय के लिए. ऑलमोस्ट हम देख पाते हैं कि 80 to 90% लोगों ने हैंड रेज कर. तो ये जो स्ट्रेस है वो कब इस हालत में पहुंच जाता है कि इंसान की इच्छा ही नहीं होती कि अब मुझे जीना है और मुझे मर जाना चाहिए. उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति या मेंटल हेल्थ इशू है. इट इज़ अ सोशल इशू, इट इज़ अ फैमिलियल इशू, इट इज़ अ lack of resources and there are so many other things which are actually leading to this problem. जहाँ पर हम actually struggling minds के साथ जब जूझते हैं और उनको डील करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि they are going through a lot. It's not a one thing that we can call कि ये कारण है और इसलिए इस बच्चे ने सुसाइड किया या उसने सुसाइड के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि ये वजह थी. शायद इतना छोटा और इस एक सेंटेंस में समाने वाली बात ये नहीं. उस गंभीरता को सीरियसनेस को हमें समझना ज़रूरी है that how the person going through the struggles of every day कब उसकी हालत ऐसी पहुंच जाती है कि वो हार मान जाता है. मैं क्योंकि ये स्टार्ट करती हूँ तो मैं एक छोटी सी स्टोरी या कहानी फैमिली की बताना चाहती हूँ कि द पर्सन बहुत सारे केसेस देखे हैं बट दैट चाइल्ड गिव्स मी अ काइंड ऑफ लाइक मुझे रिमाइंडर जैसा मुझे दिमाग में रहता है व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस. He tried, he had been abused in his locality by the people around. उसके बाद फिर वो किसी भी तरह से कैसे भी उसने सोचा कि चलो मुझे सेशन लेना है. पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स नहीं ही थेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बट ही ट्राइड बाय हिमसेल्फ. ही जॉइंड द सेशंस. फाइनली वो कॉलेज गया, कॉलेज में पढ़ना शुरू किया. देयर ही स्टार्टेड, उसका फील्ड में इंटरेस्ट था तो ही वर्कड ऑन दैट. उसको दवाई के लिए मोटिवेट किया. ही स्टार्टेड गोइंग फॉर द मेडिसिन ऑल्सो एंड सब कुछ
ठीक चल रहा था, फर्स्ट ईयर बीतने वाला था, एग्जाम का टाइम आ गया, फिर डॉक्टर लीव फ्रॉम द कॉलेज के घर जाता हूँ, वहीं से पढ़ाई करूँगा, यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। एंड देन ही लेफ्ट द मेडिकेशन एंड समहाउ एग्जाम था, तो थेरेपीज के लिए भी सेट कि अभी नहीं करना है। एग्जाम के बीच में 1-2 पेपर की शेड्यूल थी मेरे पास, 1-2 पेपर बीतने के बाद तीसरे पेपर में मैंने पूछा कैसा जा रहा है उसका एग्जाम, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड आई आस्क्ड दिस टू his sister and then he said मैं आपको नहीं मिली and it was like कि ये क्या है, मतलब ये मैं अपने क्लाइंट के बारे में बता रही हूँ, जो शायद एक पहला क्लाइंट मैंने अभी तक तो एक ही क्लाइंट मैंने लॉस किया है सोसाइटी में। अदर स्टोरीज आर सो मेनी, पर ये क्लाइंट रहा है तो मुझे बहुत एक फीलिंग रही कि हम नहीं कुछ कर पाए शायद। तो यस, दिस इज द फीलिंग एंड दिस इज द थिंग कि स्ट्रगलिंग की जर्नी कितनी लंबी होती है कहना बहुत मुश्किल है, कितना गहरा है किसका स्ट्रगल्स ये कहना बहुत मुश्किल है। दैट इज द माई थिंग कि ये आइडेंटिफाई करना इन वन गो इज वेरी डिफिकल्ट। Yes, if you are the students of psychology, you are interested in this, if you are a savior, you want to become a person who saves life, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझना और जानना पड़ेगा। होपफुली हमें इसके बारे में Right. Since most of us here are students, we need really to talk about the academic pressure or the academic stress. As in, there is rise of youth in India, and hence the rise of competitiveness, and hence the rise of academic stress. And very often the coaching cultures of Kota and Delhi always make headlines. So, ma'am, how much do you think this academic stress really contributes towards suicidalization or the rate of suicide? अगर हम डेटा की बात करें तो we see कि 7% जो है कोटा की जो सुसाइड है, अब सच में अगर हम बात करें तो कोटा में जो सुसाइड होते हैं वो रिपोर्टेड होते हैं, सभी अग्री करते हैं, वो 7% कंट्रीब्यूट करता है। एंड देयर आर सो मेनी डेटा which are not been included, जो कहीं भी पब्लिश नहीं है, कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है, उनके फैमिलीज ने रिपोर्ट नहीं करा। तो आई सी कि किसी कंट्री में मे बी इट इज 25%, बट इंडिया में 10 to 12% तक जाता होगा, जो स्टडी स्ट्रेस की वजह से है। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, बट हाँ एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। 10 भी कम नहीं है कि 10% इज देयर आउट ऑफ ऑल द सुसाइड। अगर 10 सुसाइड्स भी रेट हो रहा है, जो रेट आप बता रहे हैं उसका 2023 में 34 सुसाइड हुए थे कोटा में से, ठीक है। तो उस ऐसे अगर हम बात करें तो कोटा का अगर ये नंबर है तो पूरे इंडिया में तो शायद बहुत ही बड़ा नंबर रहा होगा इसका। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये जो एकेडमिक स्ट्रेस है सिर्फ एकमात्र कारण है जिसके कारण बच्चे सुसाइड करें। हम लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट था या नहीं, मुझे एग्जैक्टली इंजीनियरिंग या मेडिकल करना था या नहीं, मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे से समझ से मैं अगर कहूँ कि जो सो कॉल्ड कोटा में डिप्रेशन का शिकार हुए बच्चे वो मैंने बहुत देखे, मतलब नॉट एग्जैक्टली अटेम्प्टेड सुसाइड बट बच्चे बहुत मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में वहाँ के देखे। एंड मोस्ट ऑफ देम सेड कि मैम बनना तो इंजीनियर डॉक्टर मुझे भी था, मम्मी पापा का एक प्रेशर नहीं है, पर जब नहीं होता ना तब बड़ी गंदी वाली फीलिंग आती है और वो हमारा सेल्फ का दिक्कत है। तो हम कैसे बोलेंगे ये पेरेंट्स का प्रेशर। मतलब ये मेरे प्रैक्टिस में जो मुझे ऑब्जर्वेशन में मिला है कि इट्स नॉट ओनली द पेरेंट्स प्रैक्टिस, इट इज इंडिविजुअल कोपिंग मैकेनिज्म दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे, कि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसकी वजह से भी पढ़ाई एक रीजन ऑफ स्ट्रेस हो सकता है, पर कोपिंग मैकेनिज्म्स हमारे अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स जो है वो हमें समझना शुरू करना है। तो एकेडमिक प्रेशर इज वन ऑफ द रीजन बट नॉट द होल सो। Thank you, ma'am. Actually, you're saying it right. Resilience is one of key factors that you can build up in your personality, ताकि आप suicide को अपने और अपने दोस्तों को prevent कर सके। Since we are in this topic, so basically you guys have also heard it and must be knowing this. We talk about suicide when something tragedy happens. कभी हम हमारे आसपास के कोई दोस्त या फिर कभी न्यूज़ देखते हैं तभी हम सुसाइड के बारे में बात करते हैं, तब हमारा अवेयरनेस ज्यादा जाता है।
but there also must be some warning signs that we all have been neglecting. So ma'am, I want to focus on that and want your viewpoints कि वो warning signs basically क्या होते हैं जो जिससे हम लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं, that what you were saying. इसको मैं पॉइंट वाइज कोशिश करूंगी बताने का। सबसे पहले जो समझने की जरूरत है ना, वो है डिप्रेशन को समझना। मतलब डिप्रेशन वर्ड जो है बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ज्यादा। आजकल कॉमनली ये हो रहा था कि अरे यार आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिमाग ही खराब हो रखता है, ये डिप्रेशन तो पीछा ही नहीं छोड़ता। ये हमारे लिए बहुत कॉमन वर्ड हो गया, पर एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर आई नो इट्स नॉट सो कॉमन कि हम डिप्रेशन को ऐसे कह दे कि वो हलवा पूरी और किसी को भी आराम से मिल जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ लाइक वी कैन कॉल इट एज डायग्नोसिस एंड व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हम जब डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और जब पहचानने की कोशिश करते हैं, तो जो 3 मेजर टाइप के वो है होपलेसनेस, वर्कलेसनेस और हेल्पलेसनेस, वो फीलिंग हमें जरूर से समझनी है कि ये इस चीज़ों के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो दैट इज समवेयर कि ये देखा गया है कि वो लोगों को जनरली ख्याल आता है सुसाइड का। जहाँ भी ये तीनों वर्कलेसनेस, होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस आ जाएगा एक पर्सन के लेवल पे, तो उनके ख्याल आना शुरू होता है, बट दे डोंट गेट एनी पॉइंट ना, या क्या ही करेंगे जी के, कुछ तो बचा नहीं है। तो दैट इज द फीलिंग दे हैव एंड देन दे फील लाइक कि मुझे मरना ही है, अब जी के क्या फायदा। तो डिप्रेशन इज वन ऑफ द इंडिकेटर जो हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद जो बहुत कॉमनली साइकोलॉजी में और स्पेशली व्हेन वी आर इन अ स्टडी टाइम और स्टूडेंट ग्रुप में, तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होती है दैट वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी। कि पर्सनैलिटी को हम बहुत बड़ा रीज़न देते हैं, पर मैं एज अ प्रैक्टिशनर अब इस चीज़ से ऊपर उठ गई हूँ। मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ, नहीं ले पाती मैं ये वर्ड कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी इसीलिए उसको ये बीमारी हुई या इसलिए उसने वो करा। प्रैक्टिस में मुझे ये समझ आ गया कि पर्सनैलिटी सिर्फ एक मात्र फैक्टर है, वो पूरा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी अंडरस्टैंड करना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये खुद में भी सेल्फ असेसमेंट हम कर सकते हैं कि रिएक्शंस हम देते हैं ना एवरी डे में, कि जो हमें कुछ भी, जैसे हमारा हुआ कि हम रिजल्ट देख रहे हैं और लिस्ट में हमारा नाम नहीं है और हमने पटक से ऐसे अपनी हाथ पटक दी, तो ये साइन ऑफ इम्पल्सिविटी। इस तरह की इम्पल्सिविटी अगर हमारे अंदर है तो हमें ये वो इम्पल्सिविटी जनरली सुसाइडल टेंडेंसीज में कब कन्वर्ट होगा पता नहीं चलता। Whenever you are feeling निराशा, बहुत ज़्यादा से मूवमेंट है, इट्स नॉट लाइक कि कंटिन्यूटी में आप डिप्रेशन में हैं या इस तरह से हैं तो आपको निराशा महसूस हो रही है। ऑल ऑफ सडन अगर आपको निराशा फील होती है, एकदम अचानक से कुछ हो गया, एग्जाम का रिजल्ट आया या एकदम से किसी को मैंने देख लिया कि ब्रेकअप हो गया है, मतलब ब्रेकअप नहीं, मतलब चीटिंग वाली सीन हो गई है, इस तरह की चीज़ें अगर है कि किसी ने मैसेज कर दिया कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है, ऑल ऑफ दिस एकदम सडन जब आता है वो आपके उस फीलिंग को हिट करता है जो आपके लिए सो कॉल्ड इनटॉलरेबल है सैडनेस के टर्म्स में, और फिर आपका दिमाग एक्चुअली वर्क नहीं करता, और ये इम्पल्सिव एक्शन जो होता है जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा रेट ऑफ सुसाइड और जिसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये 2 फैक्टर हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ मैंने लिख के रखे हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगी कि कोई अदर डिसऑर्डर्स भी है अगर मेंटल लेवल पे जो एबनॉर्मैलिटीज है, स्किज़ोफ्रेनिया है या और भी अदर डिसऑर्डर्स है, मेनिया है, उन सब की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जैसे जनरली अवॉइडेंस या फ्लाइट अगर मेरी कोपिंग मैकेनिज्म रही है तो लॉन्ग रन में कई सारे प्रॉब्लम्स अगर हमें आते जाते हैं तो फिर लगता है कि अब हद हो गई है, तो अब जिंदगी खत्म कर देते तो और नहीं झेलना पड़ेगा। तो अवॉइडेंस अगर मेरी मेजर कोपिंग मैकेनिज्म है तो वहाँ पर है। किसी का कंसिस्टेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लाइक
घर में टॉर्चर है, फिजिकल हार्म है, इस तरह का अगर हालत है कि वो बच्चा है धीरे धीरे बड़ा हुआ फिजिकल हार्म ही होते जा रहे हैं और उसको कहीं जाने का भी ऑप्शन नहीं मिलता, घर में कैद जैसा है, तो उस तरह के कंडीशन में भी दे go for this as the only choice they have left. Poor social support है, previous history of any self harm रहा है, तो कोई chronic physical disorder है अगर, तो वहाँ पर और disability है तो यूथनेसिया का concept जो ओके भी कर दिया गया है. एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा जैसे आपको जो साइंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना थोड़ा, वो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर आपके आसपास के कोई लोग जनरली सेल्फ हार्म के बारे में अगर बात करते हैं या जिंदगी खत्म करने के बारे में बात करते हैं कि सबसे अरे यार इससे अच्छा होता कि मर जाते, ये सेंटेंस अगर कहीं ना कहीं वो यूज कर रहे हैं तो चेक दिस थिंग आउट कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोपिंग मैकेनिज्म पे वर्क करने की जरूरत है, एंड दैट कैन टर्न इनटू द इम्पल्सिव वे ऑफ हैविंग लाइक गोइंग फॉर सुसाइड. These are the things which I will do. Definitely, ma'am. Ma'am, since we are in this topic, so we have lots of Gen Z population, the new era of the youth. They are here with us. Then, when we talk about the impulsivity, that it has been seen in the people, specifically in this area, कि जो adolescent या इस age में जब जाते हैं, so lots of impulsive behavior turn out from their end. कि वो उसको ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ तो वो उस चीज के लिए बहुत सेल्फ हार्म कर रहे हैं या अचानक से कुछ ऐसे फेलियर आ जाए तो रेजिलियंस वाली प्रॉब्लम, सो दैट कुड बी आल्सो वार्निंग साइन आई गेस. हाँ राइट, यू आर राइट, बट आई वुड एक्चुअली लाइक कॉन्ट्राडिक्ट और आल्सो लाइक इसको वैलिड भी कहूंगी इस पॉइंट को. अगर हम जनरेशन वाइज बात कर रहे हैं तो आई एम नाउ 40 प्लस, तो आई एम सीइंग कि मैं ऑलमोस्ट अभी बट सीनियर एजेड लोगों को भी देख रही हूँ एज अ क्लाइंट, और सबसे ज्यादा जो ग्रुप आ रहा है लाइक 20 to 30 वाला, जो 25 to 35 वाला, दे आर मोस्ट अवेयर एंड कमिंग फॉर द सेशंस. बट इफ वी टॉक अबाउट द 15 to 25 वाला, they are like the people who are going to give psychotherapy as like the ordinary everything day. एकदम ये लोग क्यों नहीं करा सकते, बात भी तो करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है. And they are looking for therapists by themselves. उनको पेरेंट की नहीं पड़ी कि वो बुक करेंगे तब जाना है. उनको आज परेशानी लग रही है, they are booking the sessions. They are coming for the things. They are asking for the help. So that is the thing कि they are asking for the help. Self harm जो है, this little different from suicide. I hope you people understand this. तो अगर समझना होगा तो we'll talk about it that also. But self harm is little different from the suicidal thing. It is like just getting relief from that pain which I am feeling just now. ठीक है, उस सेल्फ हार्म के चक्कर में कभी कभी सुसाइड टर्न हो जाता है कि हम अपना सीरियस है नहीं, मैं कोशिश किया था अपने आप को बस उस पेन से रिलीफ देने के लिए और वो कन्वर्ट हो गया सुसाइड में. दैट हैपेंस. ठीक है, तो ये उन लोगों के क्योंकि कोपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सेल्फ जो ये फीलिंग्स आ रही है डिस्ट्रेस की, उससे कैसे अपने आप को ठीक करें, तो दे गो फॉर सच रिएक्शन. ठीक है, उस रिएक्शंस में सुसाइडल और डेथ वाली चीजें हो जाती है. तो जनरली दे आर द जनरेशन जहाँ पर आई नो कि मैं नहीं कह सकती कि परसेंटेज वाइज ये है, पर इम्पल्सिविटी यस दैट इज द थिंग. और इम्पल्सिविटी के चक्कर में सेल्फ हार्म भी बहुत हाई हो सकता है और वो लीड टू सुसाइड, कैन लीड टू सुसाइड. तो यहाँ पर इनके लिए जो कोपिंग मैकेनिज्म्स और पेशेंस की बात है और रीचिंग आउट समबडी, दे हैव लाइक बेटर स्कोप एंड प्लेटफॉर्म टू रीच आउट समबडी देन द पीपल ऑफ आवर जनरेशन. ठीक है, वो एक बार को सोचेंगे किसी को मैसेज करने के लिए कि मेरा मन डिप्रेस्ड है और मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है. एक बार को ये फीलिंग आने में बहुत बार उनको दिक्कत आएगी किसी को ये बात मुझे कहनी है. पर जो न्यू जनरेशन है 15 to 25, दे आर गुड एट दैट. तुरंत 10 लोग को तो लिख ही देते हैं कि मेरा मन खराब हो रहा है यार, बड़ी खराब लग रहा है, आई एम फीलिंग सो बैड, आज तो मेरा आखिरी दिन है, मैं मरना चाह रहा हूँ. तो इफ दे आर रीचिंग टू यू, वी कांट टेक इट हल्के में, वी हैव टू टेक इट इन अ सीरियस वे एंड like we have to reach them and
help them to deal with such situations in a better way. That we can do as the person who is receiving such messages. Right, right. मैम जैसे आपने बताया कि जो न्यू एजेंट्स डेफिनेटली कमिंग अप फॉर हेल्प हेल्प मांगने जाते हैं, बट अगर हम इंडिया को एज अ होल देखें तो इसमें देयर आर मेनी पीपल हु डोंट वांट टू सीक हेल्प। क्या पता उन्हें लगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मुझे कमजोर सोचेंगे समझेंगे। सो जो स्टिग्मा है अराउंड मेंटल हेल्थ इन इंडिया एज अ होल, ये क्यों है मैम, और ये किस हद तक है? फिर से दोबारा एक एक्सरसाइज करें। दोबारा फिर से एक एक्सरसाइज करते हैं। आप एक जन आ जाओ। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज। एकदम आंखें क्लोज करेंगे, खोलेगा कोई नहीं, ठीक है? सबका बंद है, कुछ की आंखें खुले हुए, ठीक है? और अभी मैं बस एक सवाल बोल रही हूँ, कोशिश ये करेंगे कि उस सवाल को सुनेंगे और अपना हाथ रेस करेंगे। अपने जिंदगी में जितने भी दिन आपके बीते हैं उसमें से कोई भी पॉइंट याद करिए जब आपको लगता है कि ये मेरा सबसे वीक पॉइंट था, और अगर उस वीक पॉइंट को अगर आप याद कर पा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या उस पल में एक बार भी आया था कि शायद अंत कर देना और इस दर्द से छुटकारा पाने का एक ही ऑप्शन है, वो मरना। अगर एक बार भी ख्याल आया है, सेल्फ हार्म किया है, कोशिश की है, बिना किसी एक दूसरे को देखे, बिना ये सोचे कि कोई आपको जज करेगा, क्योंकि सबकी आंखें बंद है, जितना हो सके ऊंचा हाथ उठाइएगा ताकि आप अपने बारे में बात कर सकें। तो हाथ उठाएं अगर आपको एक पॉइंट पे भी एक मन में आया है कि मुझे मर जाना चाहिए। थोड़ी और ऊंची हाथ उठाएं, कोई आपको नहीं देख रहा। एक पॉइंट भी याद करिए कि जहां पर लगे कि बहुत, प्लीज हाथ उठाकर रखेंगे थोड़ी देर। हालांकि थोड़ा पेनफुल है, पर उस पेन से कम ही रहा होगा जब आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आप अपना नुकसान कर लेते हैं, अपने आप को कष्ट पहुंचा लेते हैं, खत्म करते हैं सब कुछ। ठीक है, अब हाथ नीचे कर ले और आंखें खोले। आप लोग को तो अंदाजा नहीं है कि कितने लोगों ने हाथ उठाया यहाँ पे, फिर भी एनी गेसेस? Around 80%, I guess. 80%? हाँ, बस 60% लोगों ने हाँ हाथ उठाए। ये आपको बताना चाहती हूँ। अब मैं आप सबसे जिन्होंने हाथ उठाया है, किसी को नहीं पता कि किसने हाथ उठाया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए गए हैं? Be honest, guys, and please raise your hand. ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत कम है, उसका मतलब 1/4 हो गया ये परसेंटेज। तो दिस इज द थिंग कि अगर हम ये कहें कि स्टिग्मा इसके अराउंड सराउंड कर रहा है, तो द स्टेटमेंट इज, आई विल नॉट से कि इट्स नॉट राइट, ठीक है, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच एक्चुअली स्टॉप्स। इट इज नॉट ओनली स्टिग्मा, दे आर द वेरी कॉमन एंड वेरी, ऐसा कहो कि बेस लाइन के फैक्टर है जिसकी वजह से हम नहीं भी जा पाते। एज अ फ्रेंड हमारे ही मुंह से निकलता है, तुमको एज अ फ्रेंड हमारे ही मुंह से निकलता है, हम लोग हैं ना यार, थेरेपिस्ट की क्या कर रहे हैं? और ये सबसे ज्यादा कॉमन है, तुमको ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तुमको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ गई? क्या हम लोग जिंदा नहीं हैं? तो ये स्टिग्मा तो नहीं है, इसको तो हम स्टिग्मा नहीं बोलेंगे। बेसिकली वहां पर एक सराउंडिंग में एक फीलिंग आती है कि क्या मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, क्या मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ कि मैं अपने आसपास के लोगों को हेल्प कर सकूं। और फिर ये वाली फीलिंग जो है, खुद पर्सन जो हेल्प लेना चाहता है उसके अंदर भी ये आ जाता है, सो कॉल्ड स्टिग्मेटाइज हो जाता है कि मैं नहीं जा सकता किसी के पास हेल्प लेने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों को लगेगा कि वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। और क्या इतनी बड़ी बात हो गई थी कि मुझे सच में एक प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है? ये सवाल अपने आप में कई बार लोगों को रोक दे देता है और नहीं आ पाते। If we can call this as a stigma, but yes, this is the major stigma which is stopping. हाँ, in whole like the generation of like 40s and 50s, वो
generation had the stigma, very strong mental health stigma, and they don't feel like coming to anybody, and they don't feel कि ये लोग क्या help कर देंगे, क्या ही psychiatrist इसमें मदद कर देंगे, ये सब तो होता ही रहता है. मतलब that is the very thing taken as a like इसका तो रोज का नाटक है, ये तो करता रहता है इस तरह का. तो इस तरह की चीजें they take it very lightly, and that's what the thing कि we don't want to come to the head. Yes, ma'am, but when we are seeing the social media, because now the people are coming out of from their cell. अब वो बात करें, openly discuss करें. You have seen lots of actresses जो openly आके बताया उन्होंने कि yes, I have gone through this depression and I have taken medication or therapy. People are talking openly about it on social media, but there are also the other part where sometimes during the reels you guys might also have felt it कि कभी-कभी reels इतनी toxicity हो जाती है because of their algorithm, YouTube's algorithm. If you just watch a single negative things, you will keep scrolling down that things multiple times. I guess you guys have also felt it in that way. So I want to know your insight on this कि कहाँ पर वहाँ पर social media या YouTube reels ये सारे platform क्या impact कैसे narrative change कर रहे हैं about the society, positive and negative way, both way. अगर देखो मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई है 2007 में, और उस समय हमारे पास किताबों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था. मुझे थोड़ा रिमाइंड करने में मुश्किल हो रही क्योंकि सोशल मीडिया वाले लोग अब ज़्यादा आते हैं. दिस इज द पॉइंट आई वांट टू रेज कि सोशल मीडिया यूज की वजह से लोगों की रीच टू द थेरेपिस्ट, रीच फॉर द हेल्प हैज इंक्रीज. ठीक है, तो ये मैं कहूँगी कि हाँ, मतलब इवन इंस्टाग्राम पे भी अगर आप इस तरह के रील्स देख रहे हैं तो आपको ऑटो सजेशंस में लोगों के आने शुरू हो जाते हैं कि उनको मीट करना है, उनको जाके आप किसी को अपनी बता सकते हो. इवन इफ यू एआई को देखो या चैट जीपीटी को देखो तो खूब सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और लास्ट में दे विल राइट मीट यू द थेरेपिस्ट, ट्राई टू रीच आउट एनी साइकोथेरेपिस्ट फॉर दिस इफ यू आर फीलिंग सो. ये हर जगह मेंशन किया हुआ रहता है. So the suggestions coming from the social media towards the psychotherapist and towards therapy, psychotherapy, that has actually increased. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प बढ़ाने में तो मतलब ये कह लो कि हेल्प के लिए पहुंचने के लिए तो उनको इनकरेज कर रहा है. ट्रबल का रीजन भी कहीं ना कहीं यही रहा है बिकॉज वी आर सीइंग यूसेज की जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है. Are you actually trying to type anything or see there, or it comes automatically? It comes automatically. आप कुछ ऐसा स्क्रॉल नहीं कर रहे होते हैं, सॉरी टाइप करके सर्च नहीं कर रहे होते जनरली. तो रील्स की जो ऑटो फीड है ना, वो बेसिकली हमारे ब्रेन के सेल्स को स्टैग्नेंट करना शुरू कर रहा है. वो नहीं हेल्प कर रहा है कि हम ग्रो कर सके, अपने हिसाब से चीज़ों को सोच सके, प्लान आउट कर सके, अपने तरह से चीज़ों को देखकर कुछ नए स्टेप्स या इनिशिएटिव ले पाए. तो इसकी वजह से थोड़ा जो थिंकिंग ब्रेन है ना वो छोटा हो रहा है और सुपर एंशियस ब्रेन जो है वो एक्चुअली बड़ा हो रहा है. तो हमारा वो एरिया ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गया है, वो सेल्स ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं जो बेसिकली निगेटिव थिंकिंग की तरफ या लूप थिंकिंग की तरफ हमारा जाता है. और क्योंकि वो हम फीड नहीं कर रहे, हमने वो प्लान नहीं किया, वो ऑटो फीड है, तो वो लूप में चलने के चांसेस बहुत हाई है. आप देखो एक उस पे आपने रील पे क्लिक किया और अगर आपने देख लिया उसका 1 2 बार 3 बार रिपीट हो गया तो सिमिलर सजेशंस आपको आना शुरू हो जाते हैं. तो इस तरह से वो आपके दिमाग को रूल कर रहा है और आपके ऑटो फीड की वजह से दैट इज हैपनिंग विद अस. तो ये कोशिश करना है कि ये बुरा नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए इन जनरल दिस प्लेटफॉर्म हैज हेल्प सो मेनी पीपल. ट्राई टू डू इट कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कंट्रोल में वो हो, आप उसके कंट्रोल में. तो डू ट्राई टू डू दैट कि आप जरूर 5 घंटे टाइम बिताना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो फॉर दैट, बट मेक श्योर कि यू आर फाइंडिंग इट द थिंग्स ऑन देयर एंड यू आर रीडिंग बाय योर चॉइस, यू आर कंट्रोलिंग योर. Right. Now it's time for our special segment now. Now, इस segment में there was a blank sheet of cards passed over to the audience. उन्होंने कुछ question लिखा होगा उसमें.
can be regarding anything, and we have some pre-prepared questions regarding myths regarding suicide and the mental health. So what we will do is we'll shuffle all the cards together, and somebody from the audience will come up and choose one card for you to answer the question. Can I have somebody from the audience come up to take a Anyone from card? the audience would like to come? Yes. You can pick any. Like you have to. If you would like to. Does loss of identity lead to writing something? Survival tendency, as in if one wants to do something that lies, but she does not, cannot get the enthusiasm to do it. Yeah. Basically, whosoever has written this, the person wanted to understand the loss of identity. It's a very big thing, loss of identity. बहुत सारे situations में ये situation अपने आप में एक holistic thing है जो आ सकता है किसी भी person का. Loss of identity हम कैसे समझते हैं? Like ये क्या है loss of identity? It is something की worthlessness अगर पूरी तरह से इसको एक साइकोलॉजिकल वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो इट्स वर्थलेसनेस, कि मुझे अपने वर्थ के बारे में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, मैं क्यों ही एग्जिस्ट कर रहा हूँ इसका मुझे जवाब नहीं मिल पाता. तो व्हाई डू आई एग्जिस्ट, दैट इज द मेन थिंग कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट की लॉस ऑफ आइडेंटिटी. तो जब मेरी नॉन एग्जिस्टेंस की फीलिंग आती है, मेरे वर्थलेसनेस की फीलिंग बढ़ जाती है, तो yes, it may lead to the suicidal feelings. ठीक है, फिर मेरा जी के क्या फायदा, मुझे मर जाना is the better choice. ये possibility है, ठीक है. But actually like it's a very big and vague word नहीं बोलूँगी, but it is one of the things. Worthlessness always lead to the suicidal tendencies, darknesses. Generally हम लोग hopelessness को ज़्यादा connect करते हैं suicidal tendencies से, वर्थलेसनेस को नहीं करते, कनेक्ट करते, डायरेक्ट ऐसा रिलेशन नहीं बनाते. दैट इज द थिंग आई होप कि जिसका भी क्वेश्चन है आंसर इट. ठीक है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी कैन लीड टू द सुसाइडल थॉट्स एंड फीलिंग्स, बट यस इफ इट इज अटैच्ड विद द होपलेसनेस थिंग्स तो इट इज लाइक मोर इनग्रेव हो जाता है और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. Right now. Can we have the second volunteer from the audience to come take up a question? Yes, Yes, please please. come. Would you like to take the question? What can we do or practice on personal level to overcome suicidal thoughts, like the practical ones? This is basically what can we do or practice on personal level. Basically individual coping mechanisms के बारे में बात किया जो already हमने topic include किया है. But the practical ones जो यहाँ पर add किया जिसमें भी I like that just practical ones. तो सबसे पहले तो एक चीज जो आपको फाइट करनी है, अगर आपके पास सो कॉल्ड दोस्त या मेरे लोग नहीं है तो वो आपको शुरू कर देना चाहिए कि मेरे पास मेरे लोगों के नाम है. आई एक्चुअली यूज दिस 5 फिंगर रूल. जिसने भी मेरे से थेरेपी ली होगी अगर यहाँ पर कहीं तो दे मस्ट बी नोइंग दिस कि मैं ये हैंड बनवाती हूँ और यहाँ बीच में बोलती हूँ अपना नाम लिखने के लिए
और कहती हूँ कि ये पांचों फिंगर आपके वो सपोर्ट हैं जिसका नाम आपको लिख के रखना है अपने पास। ये काम आपको जरूर करना है। अगर आप सुसाइडल थॉट से थोड़ा भी वो कर रहे हैं तो डू दिस एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ। ड्रॉ योर हैंड ऑन योर एनी ऑफ द कॉपी और द place to can call that this is my personal space of writing. There you can write 5 names whom you can look for the help at any point of time. And I know I have met so many people जिनके पास ये पांचों उंगलियां खाली रह जाती, तो मुझे फाइनली बोलना पड़ता है मेरा नाम लिख लो चलेगा, ठीक है। वहां पर तो वो मेरे पास पहुंच गए इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा नाम लिख लो तो चलेगा, but there are the people who have not reached me, and of course that's why it is the third reason of like loss of lives in the world. तो वहां पर जो आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, अगर आपके पास लोग नहीं है और ऐसी सिचुएशन आप फील करते हैं कि आई एम ऑल अलोन ऑन दिस अर्थ एंड देयर इज नो वन whom I can meet and talk to, शायद वो नहीं समझेंगे बिकॉज एवरी लाइक मजाक कर रहा है ना, ऐसा किसको मन कर सकता है चल चल मैं भी तुम्हारे साथ मरता हूँ, कहाँ मरने चलेगा। There are so many people who have heard these things also around in their surrounding. Maybe आप लोग साइकोलॉजिस्ट हैं तो लग रहा होगा ये नहीं हो सकता, but yes, there are the people who say these words also अपने ही घर के लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन में कोपिंग मैकेनिज्म जो है ना, अगर आपके पास लोग नहीं है तो सबसे पहले वो जज्बा जो हम जीने का हमें चाहिए वो कैसे आएगा, वो चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्राई टू राइट वन। हम लोग पहले जब हमारे टाइम में कार्ड मिला करते थे ना हर चीज में, तो 101 रीजंस टू लव यू वाला कार्ड बहुत पॉपुलर होता। नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट इन प्रैक्टिस, 101 रीजंस व्हिच मेक्स मी फील हैप्पी, ये लिखना शुरू करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके ये 5 लोग उसमें इंक्लूड हो। 101 reasons which makes me feel relaxed, you can also add that. तो उसमें 3 कैटेगरी हैं, हेल्पफुल एंड इंडिपेंडेंट, हार्मफुल बट हेल्पफुल और हेल्पफुल बट डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी ना 101 कारण लिखो और उसको डिवाइड करने की कोशिश करो। किसी को भी अगर ये बताना है ना, तो अगर आपको थोड़ा भी हिंट लगता है कि ये पर्सन इज फीलिंग सुसाइडल और I am having such feelings, start working on this 101 reasons. It can start from मुझे पौधों के नए घर हरे पत्ते निकलते हैं तो भी अच्छा लगता है देखने में। कभी कभी आसमान को अचानक से देखता हूँ तो वो कलर जो नीला पड़ता है और उसमें रुई जैसा कुछ कुछ बनता है वो देखना अच्छा लगता है। You can list out such things in that 101 reasons. And if you will write such reasons and उसको फिर आप इस 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे ना, तो you will always have the list of the coping mechanisms जो आपको इस फीलिंग से बाहर निकालने के लिए बहुत है। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है अपने पर्सनल लेवल पे, तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, डू दिस एक्सरसाइज। मेरा नंबर वेबसाइट पे मेरे को जरूर भेज देना whosoever the person is, अपनी लिस्ट। आई वुड लव टू रीड सच लिस्ट, जरूर भेजना, ठीक है। Like you said, ma'am, can we have the third volunteer to come up and pick a card? Who have attempted suicide in the past, they will not do it again. क्योंकि उसने हेल्प ले ली है, वो थेरेपी में जा रहा है, उसके वो दवाइयाँ कर रहा है, ये एक मिथ है। अगर आप एक साइकेट्रिक प्रैक्टिस में अगर जाएंगे तो यू विल सी कि इट इज वेरी कॉमन कि जिसने सेल्फ हार्म करा है वो रिपीटेटिवली 2-4 साल 5 साल बाद भी वो फीलिंग्स रहती ही है कहीं ना कहीं। देयर इज नो पॉइंट टू लिव उस चीज को पूरी
पूरी तरह से थेरेपी में ठीक कर पाना, आई डोंट बिलीव कि हम लोग कर पा रहे हैं कि 100% इस स्टेटमेंट को ठीक कर दिया, इतना इजी नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। We'll take one more volunteer for this segment. Can we have one more person? Most suicides happen suddenly without warning. Again, it's a myth. Most suicides happen suddenly without warning. No, not like all of the suicides happen without warning, but most of the suicides actually gets the warning. इवन इम्पल्सिविटी वाले सुसाइड में भी ना कहीं वार्निंग रहती है। वो लड़ाइयाँ हो रही हैं घर पर, चिड़चिड़ हो रहा है, या एग्जाम के दिन आ गए हैं पास और एग्जाम देना शुरू हुआ है और दिमाग में आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, जिस दिन रिजल्ट आने वाला उससे पहले कई बार वो इस तरह की बातें कहती कि अगर नहीं हुआ ना तो ये तो मेरा आखिरी साल है, काइंड ऑफ सेंटेंस। अब तो मैं किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ने वाला, इसके आगे मेरी हिम्मत टूट जाएगी यार अगर इस बार नहीं हुआ तो। इस तरह की चीजें वो हिंट कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। ये सेंटेंस हमें इतने आम लगने लगे हैं ना कि हमें कभी हिंट ही नहीं करता कि इस सो कॉल्ड साइंस ऑफ डिप्रेशन है, या ये सो कॉल्ड ऐसा है कि पर्सन इज नॉट फीलिंग सो होपलेस इनसाइड, सो हेल्पलेस इनसाइड कि अगर ये वाला एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा। तो जनरली दिस इज बेसिकली वार्निंग तो देते हैं पर बहुत साइलेंट वार्निंग। एज सच आपको ये नहीं है कि रस्सी टांग के घूम रहे होंगे कि उस रूम में रस्सी टांग दिया है तो सबको पता चल जाना चाहिए कि हम सुसाइड करने वाले, ऐसा कभी नहीं होता। जनरली बहुत सारे मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें कि जिस क्लाइंट के लिए हमारे दिमाग में रहता है कि पता नहीं है क्या करेंगे, देयर इज अ clinical practice we used to follow कि if there is no 5 people around that person, so we need to inform in the local police station about the person feelings of suicide. That is the clinical practice we have to follow. ठीक है कि अगर आपको फैमिली को इन्फॉर्म करने का कंसेंट नहीं देते हैं क्लाइंट्स, तो आपको ये उनको बताना पड़ता है कि हम फिर लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे। तो वहां पर तो वो बता रहे हैं, वहां पर तो सच में कहीं ना कहीं दे आर गिविंग दैट साइंस दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, हमेशा मरने के ख्याल आते रहते हैं। बट साइलेंट वार्निंग्स आर जनरली व्हिच आर मिस्ड। जनरली दो साइंस आर लाइक कि क्वेश्चन पूछना कि मैं अब घर पर नहीं रहना चाहती, क्या मेरे लिए कोई ऐसी जगह है, जैसे मैं बता रही हूँ कि माई कम्युनिटी मीटिंग्स और जो मेरे ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसमें से भी कभी कभी ऐसे लोग मिले हैं कि आजकल इच्छा नहीं हो रही है मिलने की, बात करने की, पब्लिक वो में जाने की। घर में जनरली बहुत सीरियस स्ट्रेस है, या तो डोमेस्टिक वायलेंस है, या तो बच्चे का कोई डिसऑर्डर है, या फैमिली टॉर्चर्स है बिकॉज ऑफ द लाइक लड़ाई और एवरीडे इश्यूज। तो वो एवरीडे की प्रॉब्लम्स हैं, एज सच डिप्रेशन भी नहीं है, दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग एंड डूइंग इट, फाइटिंग इट रियली वेल। और उसके बाद वो हिंट क्या दे रहे हैं कि बहुत थकान सी हो रही है, अब लगता है कि अब और नहीं होगा। These are the warning signs that they are giving in such situations. अब नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, रोज रोज का ड्रामा हो गया है, या रोज रोज की टेंशन हो गई है, पता नहीं अब तो डॉक्टर के यहाँ भी जाने का मन नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर whose child is suffering from cerebral palsy और इस तरह का अगर है तो मेरे दिमाग में लाइक इंसिडेंट्स आने लग गए हैं कि a very close classmate who has got a child who is suffering from cerebral palsy and both of them she was actually in touch with me, तो उनको वहीं पे कांटेक्ट करा दिया उनके
शहर में, और शी वॉज गोइंग फॉर द थेरेपीज एंड डूइंग वेल, अच्छे से ट्रेनिंग कर रही थी घर में, सारे सब जगह जाती भी थी, पार्टिसिपेट भी करती थी, बट दिस वॉज अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम हर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स कि बहुत थकान हो जाती है, अब अच्छा नहीं लगता. एंड देन वन डे वी गॉट द न्यूज कि शी गॉट हर लाइफ along with her child. This is the situations we are actually like going through and seeing कि ये होता रहता है. तो बेसिकली वार्निंग नहीं देते, लोगों को पता नहीं चलता, वर्ल्ड वाइड को वार्निंग नहीं देते, पर फ्यू पीपल गॉट द आइडिया कि ऐसा कुछ होना है, बट वो एग्जैक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि ये सुसाइड का साइन है या वार्निंग. उतनी अवेयरनेस एक्चुअली लोकल पीपल में नहीं है. एक चीज पूछनी है, आप कितने लोग जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, मोस्ट ऑफ देम हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हम लोग ज्ञान भी सुन रहे हैं, हम ज्ञान बांट रहे हैं. जिनको चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता. एंड दैट इज एग्जैक्टली द पिक्चर इज. तो वही दिक्कत आ रही है कि आम जनता जिनको इस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिनको घर में जानकारी होनी चाहिए, जिनके घरों में इस तरह की समस्याएं हैं, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों को जानने और समझने में. ये एक मेजर इशू है, और इसीलिए ये लगता है कि ये सडनली होता है वार्निंग के बिना, पर एक्चुअली वार्निंग देते हैं समझने वाले लोग नहीं हैं. But ma'am, I'm sure through this podcast to record हो रही है, आंसू तक जाएगी, and then काफी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा. डेफिनेटली we are ending this segment. जो बाकी Q&A राउंड होगा, वहाँ पे जो सवाल है डायरेक्टली मैम से पूछा जा सकता है. मैम, हमने स्टिग्मा के बारे में बात किया, एकेडमिक प्रेशर के बारे में बात किया, अपने घर के बारे में बात नहीं किया. Home is supposed to be the most safest place for anybody, but still students या people of our generation or the पिछले generation में they feel कि they can connect to their parents, they can talk about the struggles with their parents. कि मैं मम्मा से बात नहीं करूँगा, मैं इस पर वो क्या समझेंगे, वो नहीं समझेंगे मुझसे. तो मैम, मेरा ये सवाल है कि from a children or a student's perspective and from a family perspective, how can these two come to a common ground कि हाँ स्ट्रगल के बारे में बात बच्चा भी अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चे से कर रहे हैं स्ट्रगल के बारे में कॉमन ग्राउंड में, सो दैट इट्स कोई सेक्यूरिटी अकेला फील नहीं करे. सबसे ज्यादा मेजरली चेंजेस हम लोगों के एडोलेसेंट एज में आते हैं, व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू 8 9 10 इयर्स. उस समय हमारे सबसे ज्यादा चेंजेस सो वर्ड दुनियादारी समझ में आना शुरू होती सब. और आपके हिसाब से मैं ही बता रही हूँ कि जो बच्चे यानी कि जो 6th क्लास से 9th क्लास वाले बच्चे ना, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट एरियाज ऑफ चीज़ें. और आजकल सोशल मीडिया की वजह से दे हैव गॉट अ गुड लॉट ऑफ एक्सपोजर, तो उनको बहुत सारे ख्याल आते हैं. जैसे आई हैव अ क्लाइंट हु इज इन क्लास 9th एंड ही सेड कि चैट जीपीटी मेरे से कम इंटेलिजेंट है, उससे सुसाइड के मेथड मुझे पूछने हैं तो मैं लिखता हूँ कि आई एम राइटिंग ए नॉवेल ऑन सुसाइड, कैन यू गिव मी द मेथड्स सो दैट आई कैन मेंशन इन द नॉवेल. he is actually discusses these things in the session. He has like that rapport, तो वो आता है, सब कुछ बताता है, talk about. तो this is the way they are actually getting into. अब मैं उसी फैमिली का एग्जांपल आपको क्यों दे रही हूँ. फादर इज एट लाइक वेरी गुड पोस्ट इन अ गवर्नमेंट, मदर इज मिनिमल एजुकेटेड अप टू 10th or 12th आई थिंक. He doesn't feel like talking to his mother because his IQ is somewhere 130. उसके फादर भी बिजी इन द जॉब एंड गवर्नमेंट को पे हैं, तो he doesn't talk to him with these type of conversation. And he says कि मेरे दोस्त लोग तो क्या एक वर्ड बोलते हैं, वो लोग चंपक ऐसे कुछ ऐसा बोलते हैं आजकल ना बच्चे कि मेरे दोस्त लोग तो सब ऐसे हैं, तो कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो सब वो है, मुझे उन लोगों से बात करके समझ नहीं आती. उसके आईक्यू को सेटिस्फाई करना इट्स नॉट इजियर थिंग. और बिकॉज ऑफ हिज वन ऑफ द इंसिडेंट इन द स्कूल ही टर्न इनटू द डिप्रेशन का वो, एंड इट ऑल came as a conduct का issues, मतलब वो बहुत violent होने लगा, and then all those things. Then he reached to the psychotherapist for the session.
अब ऐसे तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे शेयर करूं और कौन मेरे मेंटल हेल्थ को सेटिस्फाई करेगा. Family have been informed, family has been encouraged to have the dealing with such children. But there are so many other psychological factors which are working in between the family and the child. कई बार सिर्फ हम generation gap की बात करते हैं, but there are other things also which is working. जैसे सबसे कॉमन सी दिक्कत होती है जो फैमिली के लेवल पे हम लोगों ने फील किया है, जैसे आप खुद ही जाते होंगे अगर परिवार से पूछने के लिए कि मैं सोच रहा हूँ कि बीएचयू का तो फॉर्म भरा है, तो बाहर के भी किसी कॉलेज का भर देता हूँ, अगर बीएचयू का नहीं होगा तो बाहर हो जाएगा. फैमिली के मुंह से निकल दिया, बना से बाहर जाने की जरूरत क्या है, यहाँ घर है यहीं रहो. सीधा सेंटेंस. क्यों जाना चाहते हो, इसका क्या रीजन है, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे कोई बात ही नहीं करता फैमिली. ये अगर आप एज अ एडल्ट, एज अ यंग एडल्ट, अगर आप ये encourage कर सके फैमिली में to have the discussion in the question answer way rather than giving the sentences, कि पापा या मम्मी आप ये भी तो पूछ सकते हैं हमसे कि और क्या क्या ऑप्शन है, rather than ये बोलने के कि यही ऑप्शन है इसके अलावा कुछ नहीं करें. तो हम लोग भी जब वो बोलते अरे जाओ यार मम्मी तुम समझती ही नहीं हो, मुंह से हमारे भी ऐसे ही निकलता है. तो ना हम उनको सिखा रहे हैं ना वो कहीं से सीख रहे हैं. पेरेंटिंग का कोई स्कूल नहीं है. अगर इंस्टा पे या कहीं पे भी ये कोई दे रहा है कि न्यू पेरेंट्स कम फॉर द ट्रेनिंग, देयर इज नो ट्रेनिंग एज सच. ईच एंड एवरी पेरेंट एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड इज वन ऑफ द यूनिक कॉम्बिनेशन. हम कहीं भी नहीं बोल सकते कि उसके पेरेंट अच्छे हैं और मेरे लिए वही पेरेंट अच्छे हैं, ये गलत है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन है. उस कॉम्बिनेशन में एक चीज जो कमी है वो है कम्युनिकेशन की. उस कम्युनिकेशन को जितना ज्यादा जनरेट कर सके फैमिली लेवल पे, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई एम गिविंग टू यू, नॉट द पीपल कमिंग फ्रॉम द लास्ट जनरेशन. उनको उनके माँ बाप ने बात ही नहीं किया उनसे. 7-8 बच्चे के घर में कौन बात करता था ऐसे बैठा के? तो उनको नहीं समझ आता कि ये बात करने का स्कोप है. उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन समझ में आता है, जाओ एग्जाम दो, आ जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, तुम्हारी शादी है परसों शादी हो जाएगी, ऐसे बातें हुआ करती थी. तो दे आर फ्रॉम दैट जनरेशन. तो उनको अब अगर आप चाहते हो कि वो कम्युनिकेटर बने, वो आपसे बात कर सके, तो आपको कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी. सिट विद देम, let them know that what questions you wanted to ask. I have practiced this in my practice, calling the parents and helping them to discuss the things in the front of me in the chamber, and they did it and it really worked. कि अब पापा सुनने लगे हैं, पहले सिर्फ बताते थे. तो वो डिफरेंस आता है. कि आप ऐसा नहीं कि थेरेपिस्ट की जरूरत है. एज अ चिल्ड्रन ऑल्सो यू कैन टेक दैट इन चार्ज एंड हेल्प देम टू बी लिसनिंग क्या होती है और क्वेश्चन फ्रेम करके बातचीत को कैसे बढ़ाया जाता है. आप अगर उनको रिजेक्ट कर दोगे तो वो तो नहीं है उस हालत में कि वो आपको बुला के बात करे. And regarding the same thing, that support from home. If somebody is showing warning signs, मतलब कोई दोस्त है हमारा जो पोस्ट कर रहा हो ऑनलाइन या फिर देख रहे हैं आप कंटिन्यूसली कि वो बहुत सैड है, रूम पे अपने आप को लॉक कर रखा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, अगर ऐसा कोई वार्निंग साइन ऐसे कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है, तो being a friend, being a family member, being a society, a part of society, हमारा क्या स्टेप होना चाहिए to reach out them कि उनको भी awkward ना लगे and they can also come up with the solution. जैसे आप में से कोई भी, क्या आप दोनों से पूछूंगी कि क्या आप जान रहे हैं कि मैं तो एक पर्सन हूँ और मैंने कहा है कि मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ और मेरी हालत बड़ी खराब है, घर में तो बेइज्जती फैलती हुई है, बहुत दिमाग खराब है, मुझे लगता है मैं engaged हूँ. What is the first sentence you will speak? Will probably tell them कि कोई बात नहीं, हो गया, लाइफ बहुत बड़ी है, will give hope because hopelessness is a problem, so will give hope. मेरे दिमाग में आएगा ये मुझे नहीं समझती.